من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the class of Educational Psychology. I am your teacher, Jan Muhammad, Subject Specialist. آج ہمارا ٹاپک لرننگ کے حوالے سے ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے بیہیویئرزم کے بارے میں پڑھا تھا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بیہیویئرزم کیا ہے. بیہیویئر کا مطلب ہم اپنے روزمرہ زندگی میں جو ایکٹ بھی پرفارم کرتے ہیں اسے بیہیویئر کہتے ہیں. اور ازم کا مطلب تھا ایک فینامنا یا ایک پروسیس. تو ہم نے بیہیویئرزم کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے بیہیویئر کے مختلف ٹائپس ڈسکس کیے تھے اور آج ہمارا ٹاپک ہے لرننگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, لرننگ کیا چیز ہوتا ہے؟ لرننگ کا نام آپ نے سنا ہوگا. The process of change in behavior or knowledge as a result of training or experience is called learning. یہ لرننگ یعنی سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. The process ایک ایسا عمل, ایک ایسا مظہر جس میں بیہیویئر اور نالج میں چینج پیدا ہوتا ہے as a result of training or experience. ٹریننگ یا تجربے کے نتیجے میں. جب تجربے یا کسی ٹریننگ کے رزلٹ میں بیہیویئر یا نالج میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس پیدا ہونے والی تبدیلی کو ہم لرننگ کا نام دیتے ہیں. تو واٹ از لرننگ؟ دا پروسیس آف چینج ان بیہیویئر اور نالج. جب بیہیویئر یا نالج میں چینج پیدا ہو جائے ایز ریزلٹ آف ٹریننگ اور ایکسپیرینس, ٹریننگ یا ایکسپیرینس کے ذریعے, تو اسے ہم لرننگ کا نام دیتے ہیں. لرننگ از any relative permanent change in behavior brought about by experience or practice. لرننگ جو ہے یہ ایک پرماننٹ چینج کا نام ہے. ریلیٹیو کا مطلب ہے نسبتاً. جب تقریباً ایک مستقل تبدیلی ہمارے بیہیویئر میں, ہمارے نالج میں ایکسپیرینس اور پریکٹس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے تو اسے ہم لرننگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم تھیوریز آف لرننگ کو ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دا مین تھیوریز آف لرننگ. لرننگ کے ڈفرینٹ تھیوریز ہیں. سب سے پہلا تھیوری جو ہے وہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ یا ٹائپ 1 لرننگ. لرننگ کے حوالے سے پہلی تھیوری کا نام ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور ٹائپ 1 لرننگ. کلاسیکل کا مطلب ہے کوڈ, کنڈیشننگ کا مطلب ہے ٹریننگ, لرننگ, ایکسرسائز اور ایکٹیویٹی. کلاسیکل کنڈیشننگ کو کلاسیکل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں لرننگ کے حوالے سے استعمال ہونے والا سب سے پرانا نظریہ ہے. اس لیے اسے ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں. یعنی ٹریننگ اور لرننگ کے لیے جو سب سے اولڈ تھیوری ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے جسے ہم ٹائپ 1 لرننگ بھی کہتے ہیں. اس تھیوری کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, یعنی اس تھیوری کو کس نے پروپوز کیا تھا, اس تھیوری پہ کس نے کام کیا تھا, اس کے سجیشن کس نے کیے تھے. This theory was presented by a Russian physiologist Ivan Fallov. اس کا جو پیریڈ تھا 1849 سے لے کر 1936 تھا. یعنی اس کا ڈیٹ آف برتھ 1849 تھا اور ڈیٹ آف ڈیتھ 1936 تھی. ایوان فالو نے 1890 میں اس تھیوری کو پریزنٹ کیا تھا and he was awarded by a Nobel Prize in 1904. اور 1904 میں اسے اس عظیم کارنامے پہ ایک نوبل پرائز بھی ملا تھا. ایوان فالو was the first person to study and write about the principles of classical conditioning. ایوان فالو سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے کلاسیکل کنڈیشننگ کے پرنسپلز کو بیان کیے, اس کے جو اصول تھے ان کو ایکسپلین کیے. ایوان فالو ہی واز ناٹ اے سائیکالوجسٹ, وہ سائیکالوجسٹ نہیں تھا بلکہ وہ ایک فزیالوجسٹ تھا جو اینیملز کے ڈائجسٹیو سسٹم پہ کام کر رہا تھا. اور آخر میں اس نے اس سے ڈسکوریز کیے جو اس نے اپنے تھیوری میں بیان کیے اور ایکسپلین کیے. This concept was started from the salivation of dog by ringing a bell as food was provided. اس کنسیپٹ میں اس نے ڈاگ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. بعض اوقات پیپر میں ایک MCQs ٹائپ کوسچن ایسا بھی آتا ہے کہ ایوان فالو نے کس جانور پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا. تو آپ کو یہ نام ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا جو ایکسپیریمنٹ تھا, اس نے جو ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا وہ ڈاگ پہ کنڈکٹ کیا تھا. اور ڈاگ کے منہ میں جو واٹر آیا تھا, واٹرنگ ان ماؤتھ جسے ہم سلائیویشن کہتے ہیں, اس پہ اس نے کام کیا تھا. ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلاسیکل کنڈیشننگ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے. The basic learning process, وہ بنیادی learning process that involve association of natural stimulus with artificial stimulus to get a natural response.
क्लासिकल कंडीशनिंग में हमारा ताल्लुक 3 टर्म्स के साथ होगा। एक होगा नेचुरल स्टिमुलस, दूसरा होगा आर्टिफिशियल स्टिमुलस और तीसरा होगा नेचुरल रिस्पांस। स्टिमुलस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि स्टिमुलस एक चेंज होता है हमारे बैरूनी माहौल में या अंदरूनी माहौल में जो तब्दीली रूनुमा होती है उसको हम स्टिमुलस का नाम देते हैं, या स्टिमुलस एक एजेंट का नाम है जो हमें रिजिस्ट करने पर मजबूर करती है, तो इसे हम स्टिमुलस कहते हैं। एक होता है नेचुरल स्टिमुलस और दूसरा होता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस, और उसके खिलाफ जो रिस्पांस पैदा होता है उसे हम नेचुरल रिस्पांस कहते हैं। ये हम एक्सपेरिमेंट में क्लियर करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है। द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ डॉग। इवान फारो ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। द ऑब्जर्वर वाज हिडन, ऑब्जर्वर हिडन था, छुपा हुआ था एक्सपेरिमेंट के दौरान। फूड गिवन थ्रू ऑटोमेटिक डिवाइसेस, उसने एक डॉग को एक कुंडी के साथ बांधा था और डॉग को फूड प्रोवाइड करता था। जब डॉग को फूड प्रोवाइड होता तो डॉग के माउथ में वाटर आता था, यानी सलाइवेशन होती थी। तो फूड का प्रोवाइड करना ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, और कुत्ते के मुंह में पानी का आना ये एक नेचुरल रिस्पांस है। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन फूड वाज प्रोवाइडेड टू द डॉग सलाइवेशन अकर इन हिज माउथ। जब डॉग का फूड प्रोवाइड होता था तो उसका सलाइवेशन होती थी, यानी फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है। ये एक ऐसा एजेंट है जो डॉग को सलाइवेशन यानी माउथ वाटर इन माउथ पे मजबूर करती है, और कुत्ते के मुंह में पानी का आना ये एक नेचुरल रिस्पांस है। उसने क्या किया, एक कुत्ते को बांध दिया था, उसको फूड प्रोवाइड होता था। जब कुत्ते को फूड मिलता था तो फूड को देखने से उसके मुंह में जो था पानी आता था, तो फूड नेचुरल स्टिमुलस हुआ, और ये सलाइवेशन यानी मुंह में पानी का भर आना ये नेचुरल रिस्पांस था। उसके बाद उसने एक स्टेप इस तरह किया कि फूड के साथ साथ एक बिल को एसोसिएट किया। जब कुत्ते को फूड मिलता था तो फूड मिलने से पहले एक बिल को रिंग करता था, तो जैसे ही कुत्ता बेल की आवाज रिंगिंग साउंड सुनता था तो उसके मुंह में पानी आता था। यानी क्या करता था, फूड को देने से पहले बेल को रिंग करता, और रिंग जैसे ही वो रिंग की आवाज सुनता तो उसके मुंह में पानी भर आता। तो फूड जो है ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, और बेल की रिंगिंग करना ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, और सलाइवेशन का आना ये एक नेचुरल रिस्पांस है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एसोसिएट किया, और दोनों के रीजन में सलाइवेशन यानी नेचुरल रिस्पांस मिलता था। जब उसने कुछ इस तरह कई मरतबा कई दिन तक ऐसा करता रहा तो इसके बाद उसने इस तरह किया कि नेचुरल स्टिमुलस को हटाया और उसकी जगह पे सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस को छोड़ दिया, यानी बेल को छोड़ा। जब वो बेल को दबाता था, बजाता था, तो उसके रिजल्ट में कुत्ते के मुंह में पानी भर आता था। तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस थे, और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल रिस्पांस मिलता था फूड के अलावा। तो ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग हुई जिससे कुत्ते को ये ट्रेनिंग हुई, उसको ये एक्सपीरियंस मिल गई कि फूड का मिलना बिल के साथ एसोसिएटेड है। अगर बिल की आवाज आ रही है तो फूड भी आता रहेगा, अगर बिल की जो रिंगिंग है वो बंद हो जाए तो फूड भी बंद हो जाएगा। तो उसने इस तरह ये तजुर्बा किया, और इस तरह उसने नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस दोनों को एसोसिएट किया, जिसके नतीजे में उसे एक नेचुरल रिस्पांस मिल गया। तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले मैंने लर्निंग के हवाले से बात की। लर्निंग क्या चीज है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज, एक ऐसा अमल जिसके जरिए हमारे बिहेवियर में या हमारे इल्म में तब्दीली रोनुमा होती है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के नतीजे में बिहेवियर और नॉलेज में जो तब्दीली आती है, जो मॉडिफिकेशन पैदा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज ए रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर का नाम है। जब हमारे बिहेवियर में एक मुस्तकिल तब्दीली पैदा होती है एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के जरिए, इन चीजों के बदौलत, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग का नाम दे सकते हैं। लर्निंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के थ्योरीज प्रेजेंट हुए हैं। सबसे पहला थ्योरी जो है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग या टाइप 1 लर्निंग।
क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है? तो मैंने लिखा यहाँ पे दो वर्ड्स इस थ्योरी के लिए इस्तेमाल हुए हैं, एक का नाम है क्लासिकल और दूसरे का नाम है कंडीशनिंग। क्लासिकल का मतलब है ओल्ड और कंडीशनिंग का मतलब है ट्रेनिंग, लर्निंग, एक्सरसाइज या एक्टिविटी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग चूंकि लर्निंग के हवाले से बहुत एक ओल्ड थ्योरी है, इसलिए उसे क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया गया है। इसे हम टाइप 1 लर्निंग भी कहते हैं। इस थ्योरी की बैकग्राउंड जो है वो कुछ इस तरह है कि इस थ्योरी को एक फिजियोलॉजिस्ट ने पेश किया था जिसका नाम था इवान फालो, और उसने कब पेश किया था? 1890 में पेश किया था, एंड ही वाज अवॉर्डेड विद अ नोबेल प्राइज in 1904 on this successful work. Now, Ivan Falo was the first person to study and write about the principles of classical conditioning. Ivan Falo एक पहला शख्स था जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग और लर्निंग पे काम किया था। क्या काम किया था? उसका जो कंसेप्ट था, उसका जो काम था, वो डॉग के सलाइवेशन से शुरू हुई थी। डॉग की सलाइवेशन का एसोसिएशन उसने द रिंगिंग साउंड ऑफ बेल के साथ किया था। डेफिनेशन कुछ इस तरह है, क्लासिकल कंडीशनिंग वो मैकेनिज्म है, वो तरीका है जिसमें हम नेचुरल स्टिमुलस को आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके एक नेचुरल रिस्पांस को ऑब्टेन करते हैं। एक्सपेरिमेंट उसने जो कंडक्ट किया था वो डॉग पे किया था। उसने एक डॉग को बांधा था, उसको फूड प्रोवाइड करता था, लेकिन ऑब्जर्वर जो था वो बिल्कुल हिडन था, और डॉग के जो सलाइवरी ग्लैंड थे वो एक ट्यूब के साथ कनेक्ट थे ताकि हमें सलाइवा के सिक्रीशन का अंदाजा ट्यूब से हो सके। उसने फूड इस्तेमाल किया जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है। जब कुत्ते को फूड मिलता था तो उसके मुंह में सलाइवेशन होती थी जो कि एक नेचुरल रिस्पांस है। उसके बाद उसने फूड के साथ साथ बेल की रिंगिंग साउंड को भी एसोसिएट किया। फूड को प्रोवाइड करने से पहले वो बेल को बजाता था, जब कुत्ता बेल की आवाज सुनता तो उसके मुंह में सलाइवा की सिक्रीशन होती, और उसके बाद एक वक्त आ गया जब उसने नेचुरल स्टिमुलस यानी फूड को हटाया और उसके जगह पर सिर्फ बेल की आवाज को सुनाई देने लगा। जब बेल रिंग करता तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा की सिक्रीशन आती थी जो एक नेचुरल रिस्पांस है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस को एसोसिएट करके एक नेचुरल रिस्पांस की प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या टाइप 1 कंडीशनिंग। थैंक्स।